Hello guys, we are doing chapter 4 exercise 4.3. We have already done question 1. Okay. Now today we'll do question number 2, question number 3, question number 4 and we'll try to finish as many questions as possible. Okay. So question number 2 says that give the equations. We have to give equations, okay, of two lines. We have to give two equations passing through 2 and 14. This is the first part. We have to give two equations. And second part is how many more such lines are there and why. There are two parts in this question. So first what let us do, what is the meaning of this 2 and 14? What does that mean? That let me write it solutions. Okay, see 2 and 14, this one. Okay, 2 and 14, what does it mean? This means that का मतलब ये होता है कि लाइन ए पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये x हो गया और ये y हो गया. Already know this thing. First value is always x coordinate, that is abscissa, and second y coordinate, that is also called as ordinate. Okay, so 2 comma 14 means what? Means x equals to 2, y is equals to 14. Okay, so we have two values of x and y. What we have to find? We have to find equations passing through these two. Very simple. Okay, see, first equation will be what? Equations, first equation or equations which have 2 comma 14 as the solution. Okay, are we have to get two equations. दो equations चाहिए हमें, तो क्या लिख सकते हैं? x का 2, y का 14. सिंपल. एक तो इक्वेशन ये लिख सकते हैं हम, x प्लस y कितना हो जाएगा? x का कितना वैल्यू है? x का वैल्यू है 2, y का कितना है? 14. तो 2 प्लस 14 कितना? 16 हो गया. ये एक इक्वेशन हो गया. वेरी सिंपल है. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. तो रब कर देते हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? आई कैन टेक minus, or I can take, see, I can take 2x also minus y also. Put the value of x. x कितना है? 2. Okay, so 2 into 2 is 4 हो गया है ना. 2 into 2 is 4 minus y कितना है? 14 है. okay? ये दोनों करेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 2 है. ठीक है, 2 into 2 is 4 हो जाएगा माइनस y कितना है? 14 है. 4 minus 14 is minus 10. Let me rub this also. Do you understand, guys? So these are the two equations which passes through these two points. All right, so this is the first part. What is the second part? You can see, you can have as many as equations. I can write many such equations. For example, x minus y. If I want to write, what I'll write? X कितना है? X का वैल्यू 2 है, माइनस y कितना है? 14 है. 2 minus 14 कितना होता है? -12 हो जाता है. ये भी एक इक्वेशन हो गया. Similarly, I can have infinite number of equations. Okay, you change the value, you change this 3x minus 2y, you put the value of x and y, you'll get one more equations. So like this, it will have infinite number of solutions. Okay guys, so second part, how many more such lines are there? So there will be how many? There are infinite number of lines which passes through this. Okay, so I'll just write, let me take it up. Okay, there, let me change the color of this. There, this is second part. Okay, there are infinite means बहुत सारा, पता नहीं ending, there is no ending actually, many finite number, endless number, okay, of lines which passes
which passes to the point the point कॉमा 14, मतलब ये दोनों का पॉइंट है, इसका तो बहुत सारा लाइंस हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं. Put different values of x and y, you'll get different equations. So this is this one. How many more such lines are there? Okay. Now why? Why? Because infinite number of lines can be drawn to a point, isn't it? Suppose I have a point, I can draw infinite number of lines. There is no ending. So this is the answer for this question number 1. Oh, sorry, question number 2. So let's do question number 3 also. Question number 3 will be what? So this is question number 3. If the point 3 comma 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, then you have to find the value of a. Okay, what does it mean? That means this is the value of x and this is the value of y. Okay, this point lies on this equation. What does it mean? It means that the value of y is given, that is 4, and the value of x is also given, that is 3. You replace the value and try to find the value of a. Okay, this a. Okay, so we'll do this also. Solutions, let's do. तो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, वो करते हैं solution. The equation of the given line, what is given? Given is 3y equals to ax plus 7. This is given. Okay, so since 3 comma 4, ये जो point है ना, lies on the this given line. Okay, given line, the therefore it this point must satisfy the given equation, satisfy the given equation, that means this one. Okay, this one. So replace the values, putting x equals to 3 and y equals to 4. Okay, these values, we get what? We get, just put the value, the equation 3 into y is 4 equals to a into x is 3 plus 7. Okay, find the value. 3 into 4 is 12 equals to 3 into a is 3a plus 7. Okay, so now if I bring this 7 this side, sign will change. 12 minus 7 हो जाएगा equals to 3a, है ना. -7 क्यों हो गया? ये प्लस था ना, ये प्लस था, यहाँ आ गया माइनस साइन. मतलब whenever you change from left hand side to right hand side or right hand side to left hand side, then sign changes. Okay? 12 minus 7 is 4. This gives what? 4 equals to 3a. So therefore a will be what? Therefore a will be equals to this 3 will come the denominator, 4 by 3. So my answer. Okay, you have to find the value of a. Thus the value of a is what? तो ऊपर ले लेते हैं. Thus the required
वैल्यू ऑफ ये क्या हो जाएगा 4 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, वी आर डूइंग चैप्टर 4 class 9 linear equations in two variables. We are doing exercise 4.3. In the previous videos I have already done exercise 4.1, 4.2, all the questions. Please go back and watch all those videos from the playlist. So today we'll do question number 4. Already question number 1 to 3 done. So question number 4. So let's read the question. Okay guys, what is the question? The taxi fare in a city is as follows. ठीक है, क्या रहता है ना, जो हम लोग टैक्सी यूज करते हैं फॉर ट्रैवलिंग, ओके, व्हेनेवर वी यूज टैक्सीज फॉर ट्रैवलिंग देयर आर सर्टेन कंडीशंस, ओके। क्या कंडीशंस, इसको पहले समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर क्या होता है ना, पहला जो किलोमीटर है उसका एक रेट दिया हुआ है अलग, ठीक है। जैसे कि देखो, पहला किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का कितना दिया हुआ है फेयर, ₹8 दिया हुआ है, ठीक है। उसका ₹8 दिया हुआ है। सो लेट्स मी राइट दिस, सो दिस फॉर दिस फर्स्ट किलोमीटर ₹8, ठीक है, समझ में ना, ये किलोमीटर, ठीक है, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 दिया हुआ है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब बाकी अब जितना भी ट्रेवल कर रहा हो, सपोज आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो पहला किलोमीटर का तो फिक्स रहेगा, ₹8 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो किलोमीटर, सपोज 9 किलोमीटर, कुछ भी डिस्टेंस हो, उसका रेट अलग है। उसका क्या रेट दिया हुआ है, ₹5 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का ₹5 दिया हुआ है। मतलब बाकी जो डिस्टेंस जितना भी आप ट्रेवल करेंगे उसका 1 किलोमीटर का ₹5 दिया हुआ है, ठीक है। सो तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं और थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब जो टोटल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करते हैं उसका कितना दिया हुआ टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, सी दिस टोटल डिस्टेंस, सी दिस इज माय टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है x किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर होता है तो यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर हो जाएगा, कैन यू प्लीज टेल मी। टोटल कितना है x से 1 किलोमीटर चला गया तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा ना। दिस इज माई x-1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है। तो ये जो x-1, जो बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसका भी रेट अलग से दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था गाइज, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का, ठीक है, ₹5 पर किलोमीटर, ये भी दिया हुआ है। समझ में कंडीशन कितना है, टोटल डिस्टेंस x है, ये x-1 है, तो ये x-1 किलोमीटर के, मतलब डिस्टेंस, we get the distances now, okay, this is 1, this is x-1, and we also got the fare for 1 किलोमीटर, ठीक है, ₹8 पर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ 8 है और यहाँ से यहाँ कितना 5 है किलोमीटर, ठीक है, समझ में। तो अभी तो हमारा फेयर कितना हो गया, भाड़ा कितना हो गया टैक्सी का, लेट्स सी, सोल्यूशन लेते हैं। टोटल फेयर क्या हो गया, टोटल फेयर हमारा क्या हो गया, यहां से यहाँ कितना हो गया, 1 किलोमीटर का 8 है तो 1 इंटू 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब ₹8 इंटू 1, ये हमारा ये हो जाएगा, इसका फेयर हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद ये यहाँ से ये कितना, 1 किलोमीटर कितना 5 है, x-1 किलोमीटर, तो ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू x-1 प्लस, है ना, प्लस ही करेगा ना, यहाँ ये फेयर इतना भाड़ा और प्लस इतना भाड़ा, तो ये कितना है 5x-1, ये हमारा टोटल फेयर हो गया। समझ में, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इज इट क्लियर गाइस, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना, सी टोटल फेयर जो है ना वो भी हमको दिया हुआ है, सी टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस तो दिया ही था x किलोमीटर, टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर इज ₹y, सी टोटल फेयर यहाँ से यहाँ तक ₹y, ठीक है, यहाँ पे y, तो टोटल फेयर कितना है y है, इक्वल्स टू, को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 5 इंटू x इज 5 माइनस 5 इंटू 1 इज 5, ये हो गया हमारा इक्वेशंस, ठीक है। इसको थोड़ा करते हैं और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x लिखते हैं पहला, 5x और 8 से 5 गया तो 3 प्लस 3 हो जाएगा ना, 8 इज ग्रेटर प्लस 3, सो दिस इज माय linear equations in two variables. So what was the question actually, see, write a linear equations, ठीक है, this is my question, write a linear equations for this informations, we have written already linear equations for this
इन्फॉर्मेशन, दिस इज माई लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद क्या है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो उसको अभी ग्राफ ड्रॉ करना है, एज वी नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 को टेबुलर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, when you have to take the values ना, when x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 ले लेता है y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला। लेट मी टेक द वैल्यू ऑफ x एज -1, -1 अगर लेता तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू, इसी में पुट करना है, ठीक है, इसी में पुट करना है, -1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस 3 इक्वल्स टू -2। व्हेन x इज -1 y विल बी इक्वल्स टू -2, ठीक है। लेट मी टेक द थर्ड वैल्यू x equals to, let me take x equals to as -2, x equals to -2 लेते हैं, -2 लेगा तो y क्या हो जाएगा, y I have in this equations again I have to replace the value of x, 5 into -2 plus 3, okay, I am replacing the value of x in this equation, ठीक है। उसको क्या हो जाएगा अभी, वो करते हैं, equals to -10 plus 3, that gives me -7, that means when x is -2 y is -7, so let me, therefore we get the following टेबल, ठीक है। ये डेटा जो है हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स टेक इट। एक्स वाई, ठीक है, एक्स का कितना है, 0 है, -1 है, -2 है, एक्स 0 है तो वाई कितना हो गया, 3, वाई -2 है, -7, ठीक है। तो दिस आर द वैल्यूज, सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस वन इन दिस ग्राफ, ओके। सो लेट्स डू द फर्स्ट वन, एक्स कितना है, 0 है, x 0 है तो obviously we know we should always start from this origin, this is my origin, we'll have to start from here, first I have to take what, x values, सबसे पहले हमको x वैल्यू लेना है, ठीक है, उसके बाद ही हमको y का वैल्यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x कितना 0 है तो इधर ही हो जाएगा 0, फिर y कितना है 3 है, ओके। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली आई हैव टू ट्रेवल 3, y पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट, okay, so this is what 0 comma 3, this is my point। second one x कितना है -1, y -2, तो x -1, तो -1 तो हमको इधर इस तरह बना पड़ेगा ना, माइनस है, x का वैल्यू माइनस, तो हमको इस तरह बना पड़ेगा, -1 तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -1 है यहाँ तक, उसके बाद y कितना है, -2 है, -2 मतलब नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, यही से हमको नीचे आना पड़ेगा, इधर इधर इधर, ये हो गया हमारा पॉइंट। दिस इज माई वर्ड, -1 comma -2, okay, this point। third one -2, x is -2, from here again I have to come this side, इसी साइड आना पड़ेगा, फिर नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ तक आना पड़ेगा, -2, ये हो गया -2, यही से हमको कितना -7, दिस -7, एक्स का लेना है फिर वाई का लेना है, तो वाई का -7 है, -7 मतलब नेगेटिव वैल्यूज कहा जाता है, नीचे आता है, ठीक है। तो इसको हमको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा,
ये -7 थोड़ा बड़ा नंबर है। x का कितना है, -2 है, तो ये -2 यहाँ पे आ गया। फिर -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो here about this point. Okay, so this is my -2, -7, so I have got 3 points, this one, this. So let me draw the line. So this will be my line. ठीक है, हो जाएगा ठीक है, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से जाके ये इसका थ्रू जाएगा। ठीक है, थ्रू जाके फिर यहाँ से पास होगा, ये पॉइंट से ग्राफ टेढ़ा हो रहा है, बट दिस विल बी द लाइन। ठीक है, लेट मी पुट दिस वन and this one as A and B. So AB is my straight line. ठीक है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 the line AB is the required graph of the linear equation y is equals to 5x plus e. So this is question number 4. ठीक है,